Good day, students. Today's lecture is on conversion of regular expression to finite automata. That is, we can convert a regular expression to an equivalent finite automata. The regular expression and finite automata are equivalent. We can convert a regular expression to finite automata and a finite automata to regular expression, as we have seen in the previous lecture. So, to convert a regular expression to finite automata, we have a Thompson's construction or Thompson's algorithm that is commonly used to convert a regular expression to a finite automata. So, this Thompson's construction is the simplest method to convert a regular expression to NFA epsilon. So, if it is DFA, NFA or NFA epsilon, all these three are called with a common name called FA, that is finite automata. So, the simplest method to convert a regular expression to NFA epsilon is Thompson's construction or Thompson's algorithm. It is developed by Thompson, so named after him. So this algorithm works by reducing the regular expressions to its smallest constituent regular expressions. So we reduce the bigger regular expression into smaller and smallest parts. Then for these smallest constituents, we convert these smallest constituents into NFA epsilon. So these smaller parts are converted into NFA epsilon. Then these NFA epsilons are joined together to make up the final NFA epsilon. So these are the steps to construct a regular an NFA epsilon from a regular expression. So first, what are the rules given by Thompson to construct a finite automata from a regular expression? So we know that if there is a single variable is a regular expression. So for that single regular expression, we have an NFA. The first state, A is and the final state. So this A is accepted by this NFA. The next one is R equal to epsilon. That is, we have a NFA that accepts epsilon. So first state Q0, then with the epsilon we move to final state Q1 or 1, which is accepted. For these simple parts, we have these equivalent NFA or NFA epsilon moves. Now, we know that we can perform three operations on regular expressions, that is concatenation, union, and clean closure. So for these three operations, the Thompson gives an equivalent finite automatas. So for a regular expression of concatenation, we construct the NFA as follows. For suppose R equal to ST, that is a concatenation. We have S, we have T. So this indicates S, that is set as concatenated by epsilon
then we have set T and the final state. Suppose we have A concatenated B. So in place of S we have A, then these two are connected by the epsilon, then we have B and it is the final state. Next, for a regular expression of two symbols joined by a union, we construct the NFA as follows. Suppose we have R equal to S plus T, S union T. So we have to move from first state to final state with two paths, one going through S, another going through T. So it is the path going through S, this is the path going through T. Before S, we are connected the first state with S using null. From S to final state, we connected with null. From first to T, we connected with null. From T to final state, we connected with null. So suppose we have A plus B, then it is A, it is B. We have to move from 0 to 5 using two separate paths. One is path for B, one path is for A, next path is for B. So 0 is connected with A by epsilon, 0 is connected with 3 by epsilon, 2 is connected with 5 through epsilon, 4 is connected with 5 through epsilon. So we move from 0 to 3 to 4 and 5. For B, we move 0 to 1 to 2 to 5 for A. So this is how we can construct NF epsilon move for A union B. This is how we can construct NF epsilon for A concatenation B. For clean closure, this is a little bit typical, so be careful about that. For clean closure, we construct the NFA as follows: R equal to S ka star. So this is S, this is S. S is connected with final state through epsilon. Initial state is connected with S through epsilon. We know that S star also accepts null, so we move from first to final state using epsilon, and it is a repetitive process, so we come back from S's last state to S's first state. Clear है जी? So that is 1s, then 2s, then 3s, then 4s, then 5s, then 6s. Suppose A का star. So A का star की एक्सपेंशन क्या होगी वो देखिए जरा. नल, सिंगल A, डबल A, ट्रिपल A, 4 बार A एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. ठीक होगी जी बात? चलिए देखते हैं. अब मान लीजिए 3A कैसे लेके आओ. A के फिर नल के साथ वापस आए 2A, फिर नल के साथ वापस आए 3A, फिर नल के साथ वापस आए 4A, फिर नल के साथ वापस आए 5A, फिर नल के साथ वापस आए 6A, फिर नल के साथ वापस आए 7A. कितनी भी आप A ले सकते हो एंड फिर नल के साथ आप फाइनल पे चले गए. सो उतनी A जितनी आपको चाहिए उतनी एक्सेप्ट हो जाएगी. 0 से एक नल के साथ आप 1 पे चले गए और 0 से एक नल के साथ आप 3 पे भी चले गए, सो दैट नल भी आ जाइए. नल इसके साथ आएगा, वो इधर से मूव करके नहीं आ सकता. ठीक होगी जी बात? सो दिस इज द finite automata for
क्लीन क्लोजर। पॉइंट टू बी नोट है, एज एनी नंबर ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस acted upon by union, concatenation or clean closure produce another regular expression, we can use the constructions to create NFA for any regular expression। क्योंकि यूनियन, कॉन्केटेनेशन, क्लीन क्लोजर किसी भी ऑर्डर में अप्लाई किए जाते हैं और कितनी बार भी अप्लाई किए जाते हैं, सो जो भी जितने बड़े भी रेगुलर एक्सप्रेशन होंगे हम उनके लिए NFA क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम इन रूल्स को यूज़ करें जो पीछे बताए गए हैं। 5 रूल जो बताए हैं, इन 5 रूल्स को यूज़ करके हम कितने बड़े रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए कितना ही बड़ा NFA एप्सिलॉन मूव बना सकते हैं। चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या कहती है। वो कहता है कन्वर्ट AB प्लस A का स्टार टू एन NF। तो सबसे छोटा पहले ये A है, फिर ये सबसे छोटा B है। देखते हैं A के लिए ये हमारे पास हमने बेसिक रूल ले लिया, B के लिए हमने ये बेसिक वही सेम जो A के लिए लगाया वही B के लिए लगा लिया। अब उससे बड़ा हो गया AB, सो AB के लिए क्या है, A और B को आपस में कनेक्ट कर दिया, A एप्सिलॉन मूव के साथ, फिर B का कनेक्शन, यानी कि ये मेरी 0th स्टेट, ये मेरी 1, ये मेरी 2 और ये मेरी 3। ठीक होगी जी बात। तो इतना AB के लिए अब हमारा क्या बन चुका है, फाइनाइट ऑटोमेटा बन चुका है। अब यूनियन A करना है, यूनियन A यानी कि यहाँ एक और स्टेट ले लें और यहाँ से आप फाइनल सीधा A के साथ चले जाएं, देखते हैं क्या कहता है। सो अब AB प्लस A के लिए बनाना है, AB के लिए इतना था, सो हमने एक स्टेट और क्रिएट की अपनी तरफ से, नल के साथ उसको जोड़ दिया और B को नल के साथ फाइनल स्टेट के साथ जोड़ दिया। ठीक है जी, ये वाली फाइनल स्टेट लगा दी। अब A के लिए सिंपल था, नल के साथ जोड़ा A को और A की सेकंड स्टेट को नल के साथ फाइनल के साथ जोड़ दिया। सो अगर आपने A लेना है तो इधर से चले जाओगे, AB लेना है तो इधर से चले जाओगे। ठीक होगी जी बात। अब नेक्स्ट अब AB प्लस A का क्लीन क्लोजर करना है। अब जरा ध्यान से देखना, इतनी पोर्शन हमारे पास बन चुका है। अब यहाँ से इसको फाइनल खत्म करके एक एरो वापस घुमा के आपने यहाँ पे ले जाना, यहाँ से एक एरो घुमा के वापस ले जाना, एक नई फाइनल स्टेट बना देनी है। ठीक है जी, इधर एक नई इनिशियल स्टेट बना देनी है और इस इनिशियल स्टेट से एक एरो इस फाइनल की तरफ ले जाना है जो कि एप्सिलॉन को इंडिकेट करेगा, क्योंकि ये सारे का स्टार हो गया। तो बस यही किया, आप देख लीजिए। ये वाली स्टेट से एक एरो नल के साथ वापस आप इनिशियल स्टेट पे ले गए, इस स्टेट पे ले गए, इसको नल के साथ एक नई इनिशियल स्टेट बनाई, नल के साथ इसके साथ जोड़ दिया, इसकी जो पहले फाइनल स्टेट थी उस फाइनल को एक नई फाइनल बनाई, उसको नल के साथ जोड़ दिया और इस नई इनिशियल को नई फाइनल के साथ नल के साथ जोड़ दिया। सो हमारे पास क्या बन गया, रेगुलर एक्सप्रेशन। इस रेगुलर एक्सप्रेशन कॉरस्पॉन्डिंगली एक फाइनाइट ऑटोमेटा प्रिपेयर हो गया। ठीक है जी, चल एक एग्जांपल और देख लेते हैं। दिस इज द सेकंड एग्जांपल। अब थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करके चलेंगे। अब सो कंस्ट्रक्ट द फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर एक्सप्रेशन A प्लस B का स्टार प्लस C यूजिंग थॉमसन्स कंस्ट्रक्शन। सो A के लिए आपको पता है, B के लिए आपको पता है, C के लिए आपको पता है। अगर A के लिए मेरे को बनाना है 1 A 2, ठीक होगी जी बात। B के लिए बनाना है तो 3 B 4। चलिए इन दोनों को अब आपने जोड़ दें, यानी कि यूनियन करना है A प्लस B का। तो दो अलग अलग पाथ होंगे, तो नेचुरली एक इधर से अपसाइड, एक इधर से अपसाइड, एक फाइनल बना लीजिए, इधर से अपसाइड, एक इधर से अपसाइड। चले बन गया A यूनियन B का बन गया। देख लीजिए 0 A अपसाइलन और ये हम वापस आ गए, 0 3
4 5। सो ये इधर से बी का आ गया, यही जो मैंने आपको बताया कुछ ऐसे ए यूनियन बी का बना। अब ए यूनियन बी का स्टार बनाना, ए यूनियन बी का स्टार, तो एक नई इनिशियल स्टेट यहाँ से, ठीक है जी, इसके साथ अब साइलेंट लगा देंगे, ये मेरी इनिशियल स्टेट होगी। एक ये वाली फाइनल स्टेट खत्म हो जाएगी, एक नई फाइनल स्टेट, ठीक है जी। यहाँ से एक एरो वापस घुमाओगे इसके ऊपर, यहाँ से एक एरो घुमाओगे यहाँ पे किसके साथ, अब साइलेंट के साथ, ये वाला भी एरो किसके साथ था, अब साइलेंट के साथ। लो जी चेक कर लीजिए, ए प्लस बी का स्टार बन जाएगा, देखते हैं जरा क्या होना है, देख लीजिए। ये हमारी पहले वाली थी, ठीक है जी, ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी का स्टार मैंने आपको बताया था। एक नई स्टेट क्रिएट की इनिशियल, जीरो के साथ किसके साथ जोड़ दिया, नल के साथ जोड़ दिया। एक नई फाइनल स्टेट बनाई, उसको भी किसके साथ जोड़ दिया, अब साइलेंट के साथ जोड़ दिया। ये 5 से एरो वापस नल के साथ जीरो पे चला गया, 6 से एक नल के साथ एरो अब साइलेंट के साथ 7 पे चला गया। सो इट इज नल, देन ए, देन बी, देन इसके साथ ए, फिर इस पाथ के साथ बी, फिर ए, फिर बी, कुछ भी आपका कॉम्बिनेशन ए प्लस बी का स्टार बन गया। अब रह गया ए प्लस बी का स्टार प्लस सी। अब प्लस सी लेना है, एक इनिशियल स्टेट और क्रिएट करनी पड़ेगी अब हमें। चलिए देखते हैं। अब ये मेरा ए प्लस बी का स्टार था, इससे हमने ए प्लस बी का स्टार यूनियन सी करना है, यूनियन सी यानी कि एक अलग पाथ से सी लेके जाना। सो एक नई स्टेट क्रिएट की गई, इनिशियल स्टेट, ठीक है जी, उसको 6 के साथ अब साइलेंट के साथ जोड़ दिया, ठीक है जी। एक नई पाथ बनाया जिसमें सी लिया गया, अब साइलेंट के साथ उसको जोड़ा और उसकी लास्ट स्टेट को फाइनल स्टेट के साथ जोड़ दिया अब साइलेंट के साथ। इसमें 7 फाइनल थी, एक नई फाइनल बनाई, 7 को अब साइलेंट के साथ उसके साथ जोड़ दिया। सो ये टोटल हमारे पास क्या बन गया जी, एन एफ ए विद अब साइलेंट मूव्स फॉर ए यूनियन बी का स्टार यूनियन सी, या ए प्लस बी का स्टार प्लस सी, ए प्लस बी का स्टार प्लस सी, या ए यूनियन बी, कुछ भी कह लीजिए, वन सेम थिंग, ठीक है जी। सो दिस इज द सेकंड एग्जांपल, हाउ टू कन्वर्ट रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइनाइट ऑटोमेटा। सो ये आपके लिए होमवर्क है, आपने ये नोट कर लीजिए, ए प्लस बी का स्टार ए बी, ए स्टार बी स्टार सी स्टार, ए प्लस बी का स्टार डबल ए प्लस बी का स्टार, ए स्टार बी स्टार ए स्टार बी स्टार ए स्टार, इन सबको आप इनका स्नैपशॉट ले लीजिए या इनको नोट कर लीजिए। इनके आपने फाइनाइट ऑटोमेटा बना के मेरे को सेंड करनी है, ठीक है जी। कोई दिक्कत आएगी तो हम फिर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।